Once again, welcome to all in the sweet and precious name of Jesus Christ. आप सबको फिर से एक बार यीशु मसीह के मीठे नाम से स्वागत करते हैं। Our Lord Jesus Christ is same as today and forever. और हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। Jesus is a miracle working God. यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। This is going to be a day of miracle in your life. और आज का दिन आपके लिए भी बहुत ही चमत्कार को लेकर आया है। Jesus Christ is in our midst, so He is going to touch you in a very special way. और यीशु मसीह हमारे बीच में है, इसलिए वो आपको छुएगा। He transforms the lives. वो आपके जीवन को बदल देगा। So He can be called as a life transformer. तो हम यीशु मसीह को जीवन को रूपांतर देने वाला बोल सकते हैं। He is going to touch you. वो आपको छूने वाला है। I would like to share you from the Word of God from Gospel according to John chapter 8. और आज मैं आपके बीच में यूहन्ना के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय से बोलना चाहता हूँ। Chapter 8 and verse 12, Jesus declared, I am the light of the world. और यूहन्ना के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 12 पद में ऐसा यीशु ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। When there is darkness in your life, you can invite Jesus Christ to your life. और जब आपके जीवन में अंधकार है तो आप यीशु को बुला सकते हैं अपने जीवन में। As Jesus is the light of the world, He can come in your life, and when He comes in your life, the darkness will disappear from your life. और जब यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुलाते हैं, यीशु मसीह जो ज्योति है वो जब आपके जीवन में आ जाते हैं, आपके जीवन में जितना अंधकार है वो दूर हो जाता है। Darkness represents evil. और जो अंधकार है वो दुष्टता को प्रकट करता है। When evil is there in your life, जब कुकर्म हमारे जीवन में होता है, you will not see spiritual things in your life. तब आप कभी भी आत्मिक बातों को अपने जीवन में नहीं देखोगे। That means your spiritual eyes are blind. इसका अर्थ है कि आपकी जो आत्मिक आंखें हैं वो अंधा है। Then demons, evil, sin, everything will dominate in your life. हर एक दुष्टात्मा, पाप और अंधकार की शक्ति आपके जीवन में प्रभुता करेंगे। And the result is destruction. और उसका जो नतीजा होगा वो होगा नाश, Depression, निराशा, sorrow, दुख, pain, दर्द, sickness. बीमारी। These are results of darkness. और ये सब अंधकार की परिणाम है। And who can save you from darkness? और कौन आपको इस अंधकार से बचा सकता है? Only the light of this world. बस इस जगत की ज्योति ही आपको बचा सकता है। And who is that? और वो कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। That's why He boldly declared, proclaimed, I am the light of this world. और उसलिए उन्होंने जगत से कहा कि मैं जगत का ज्योति हूँ। When He was declaring that I am the light of this world, He was teaching His disciples on the Mount of Olives. जब यीशु मसीह इस बातों को चेलों से बोल रहे थे तो वो जैतून के पर्वत में थे। Something strange happened there. वहां पे कुछ ऐसे विशेष घटना घटी थी। When He was teaching His disciples on the Mount of Olives, और जब वो अपने चेलों को जैतून के पर्वत में सिखा रहा था, Pharisees and religious leaders brought a lady who was caught in the act of adultery. तब फरीसी और जो शास्त्री लोग थे वो उनके पास व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लेकर आया। Actually, they came to test Jesus Christ. सच्चाई में तो वो यीशु मसीह को परखने के लिए आए थे। They want to know what is His response towards sin. तो वो ये देखने के लिए आए कि यीशु मसीह पाप के लिए उत्तर क्या देना चाहते हैं। That's why they brought this lady who was caught in the act of adultery. इसलिए वे विचार में पकड़ी गई ये स्त्री को लेकर यीशु के पास आता है। According to their religious law, this lady should be stoned to death. और उनके व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री को पथरवा कर मार डालना है। And she was taken to Jesus Christ. और वो स्त्री को लेकर यीशु के पास आ रहा है। And they asked Jesus, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say?
और उन्होंने यीशु के पास आकर कहा कि गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने हमसे ऐसे स्त्री को पथरवाह करने की आज्ञा देते हैं, तो तुम इस विषय में क्या कहते हो? They were testing Jesus Christ. वो यीशु मसीह की परख रहे थे। But Jesus stooped down and he was writing on the ground. लेकिन यीशु मसीह झुककर अपने उंगली से धरती पर कुछ लिख रहा था। But they continued asking him. परंतु ये लोग बार बार इस बात को पूछने लगे। Jesus tried to avoid them. यीशु मसीह ने उनको अनदेखा करने का कोशिश किया, But they continued asking him. लेकिन वो बार बार यीशु से पूछने लगे। So Jesus raised himself and spoke to them. He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. तो यीशु मसीह ने खड़ा होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वही स्त्री को पहले उसे पत्थर मारे। If you are sinless, that person take the first stone and throw this lady. और यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि अगर तुम्हारे अंदर पाप नहीं है तो ऐसे व्यक्ति पहले पत्थर को ले और ये स्त्री को पत्थरवाह करे। And what was the result? तो उसका नतीजा क्या निकला? It is written here, when they heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. जब उन्होंने ये सुना तो उनको अपने जो पाप का एहसास हुआ, और हम वचन में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो वृद्ध था उनसे लेकर एक एक कर उसके सामने से बाहर निकल गया। The woman became alone, standing near Jesus. और वो स्त्री उसके बीच में अकेली खड़ी रही। Her accusers ran away. और उसको दोष ठहराने वाले सब भाग गए। And this story gives us the attitude of God towards a sinner. तो ये कहानी से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक पापी को किस नजर से देखते हैं। He hates sin, वो पाप की घृणा करता है, but he is merciful towards a sinner. लेकिन वो पापियों से करुणाशाली है। He hates the act of sin, वो जो पाप का जो कार्य है उसको घृणा करता है, but he wants to save the sinner. लेकिन वो जो पापी है उस व्यक्ति को बचाना चाहता है। These people, they came to judge this adulterous lady instantaneously. और ये लोग ये जो व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री को न्याय करने के लिए लेकर आया, But Jesus was not ready. लेकिन यीशु मसीह उसके लिए तैयार नहीं था। Instead of judging this lady, इसके बजाय कि वो स्त्री के न्याय करे, he wants to save this lady. वो चाहता था कि ये स्त्री की मदद करे, बचाए इसे। That is the attitude of God towards a sinner. और वही एक पापी के लिए परमेश्वर का हृदय है। Are you going through some struggles in your life? क्या आप अपने जीवन में कुछ संघर्ष से होकर जा रहे हैं? Some sins are enslaving your life. और कोई ऐसी पाप की शक्ति जो आपको दास बना रहा है, You are not able to overcome it. और आप उसको जय नहीं प्राप्त कर सक रहे। Come near Jesus. आप यीशु के पास आइए। He wants to save your life. यीशु मसीह आपके जीवन को बचाना चाहता He है, wants to break the power of sin from your life. और आपके जीवन से उस पाप की शक्ति को तोड़ना चाहता है। Actually speaking, every sin is a force from Satan. और अगर हम सच्चाई में देखेंगे तो हर एक जो पाप है वो शैतान की ओर से हमें दबाव देने वाला है। Satan is behind every sin. और हर एक पाप के पीछे शैतान का एक काम होता है। That's why people are unable to overcome sin. और इसलिए लोग पाप के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते। Come near Jesus. आप यीशु के पास आइए। He defeated Satan on the cross of Calvary. यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। Satan's head was crushed on the cross of Calvary. और शैतान के जो सिर है वो कैलवरी के क्रूस पर कुचल दिया गया है। Jesus is victorious. और यीशु मसीह जयवंत है। So if you come near Jesus, इसलिए अगर आप यीशु के पास आते हैं He will help you to overcome sin. तो जरूर वो आपको मदद करेगा कि आप पाप के ऊपर जय को प्राप्त करें। He will not condemn you. वो कभी भी आपको दोषी नहीं ठहराएगा। He will not judge you. वो आपका न्याय नहीं करेगा। He will not throw you out of His presence. और आपको वो अपनी उपस्थिति से बाहर नहीं फेंकेगा। But on the other hand, He will help you to overcome sin.
इसके बजाय वो आपको मदद करेगा कि आप पाप के ऊपर जय को प्राप्त करें। And He will help you to lead a holy life. और वो आपकी मदद करेगा कि आप एक पवित्र जीवन को बिताएं। When this adulterous lady was alone near Jesus, और जब वे व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री अकेले यीशु के पास थी, Jesus asked her, "Woman, where are those accusers of yours? तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि हे स्त्री, वो सब कहाँ गए? Has no one condemned you?" क्या किसी ने तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं दी? What was the reply of the lady? तो वो स्त्री ने क्या उत्तर दिया? She said, "No one, Lord." किसी भी ने नहीं प्रभु। And Jesus said to her, तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, "Neither do I condemn you." मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। This is a message for all the people who are not able to overcome sin. और ये संदेश उन सब लोगों के लिए जो पाप के ऊपर जय को प्राप्त नहीं कर सकते। He is compassionate on you. यीशु मसीह आप पर कृपा करता है। He wants to save your life. वो आपके जीवन को बचाना चाहता He है wants to break the power of sin from your life. और आपके जीवन से पाप की उस शक्ति को तोड़ना चाहता है। Come near Jesus. आप यीशु के पास आइए। He's not going to condemn your life. वो आपके जीवन को दंड नहीं करेगा। If you are a sinner, अगर आप पापी हैं, if you go to a human leader, अगर आप एक मानुषिक नेता के पास जाते हैं and if your life is exposed before that human leader, और उस नेता के सामने आपका जीवन पूरा खुल जाता है, he's going to condemn your life. तो वो आपका दंड करेगा। But come near Jesus. लेकिन आप यीशु के पास आइए, He's not going to condemn your life, आपको दंड नहीं करेगा, but he's going to transform your life. लेकिन वो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा। He's going to make you new in Jesus' name. और वो आपको यीशु मसीह में एक नया व्यक्ति बना देगा। And Jesus finally told this lady, अंत में ये जो स्त्री से यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, "Sin no more." अब से फिर पाप ना कर। He's not condemning you. वो आपको दंड नहीं दे रहा। When you come near Jesus, जब आप यीशु के पास आते हैं, see the final message? तो यीशु का क्या संदेश है? Sin no more. अब से पाप मत कर। Sin is darkness. जो पाप है वो अंधकार है, Sin is wickedness. और जो पाप है वो जो दुष्टता है, Sin is unrighteousness. और जो पाप है वो अधर्म है। But Jesus is righteousness. लेकिन यीशु मसीह धर्मी है, Jesus is holy. यीशु मसीह पवित्र है, Jesus is the eternal God. और यीशु मसीह अनंत के लिए परमेश्वर है। And if you come near Jesus, अगर आप यीशु के पास आते हैं, He's going to change your life. वो आपके जीवन को परिवर्तन कर He देगा will make you righteous. और वो आपको धार्मिक बना देगा। He will transform your life. आपके जीवन को रूपांतर कर देगा And He will give you the grace to overcome sin. और आपको ऐसी कृपा देगा कि आप पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकें। Darkness will disappear from your life. और जो अंधकार है आपके जीवन से दूर हो जाएगा। After this incident, Jesus made this great statement, "I am the light of the world." और ये घटना के तुरंत भांति यीशु मसीह ने ऐसा बड़ा घोषणा किया कि मैं इस जगत का ज्योति हूँ। As I am the light of the world, if there is darkness in your life, जैसा कि मैं इस जगत का ज्योति हूँ, तुम्हारे जीवन में अगर अंधकार है, my presence is going to make you light of this world. तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें इस जगत का ज्योति बना देगा। This is a great possibility for us. ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक संभव। When Jesus comes in our life, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, we can become the light of this world. तो हम इस संसार की ज्योति बन सकते हैं। In the same chapter 8 and verse 32, और इसी अध्याय में हम देख सकते हैं, Jesus said, "You shall know the truth and the truth shall make you free." और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। He is speaking about true freedom. यीशु मसीह यहाँ पे जो सच्चा स्वतंत्रता है उसके बारे में कहता है। Are you searching true freedom in your life? क्या आप उस सच्चे स्वतंत्रता को अपने जीवन में ढूंढते हो? True freedom is not external. जो सच्चा जो स्वतंत्रता है वो दिखावटी नहीं है, It is not just physical. वो कुछ बाहर से दिखाने के लिए कोई बात नहीं है। True freedom is spiritual freedom. और जो सच्चाई में जो स्वतंत्रता है वो आत्मिक है। Generally, people are experiencing outward freedom in their life.
और बहुत लोग वो बाहरी रूप से स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, but spiritually they are in bondage. लेकिन वो आत्मिक तौर पे आज भी बंधन में है। Demons are tormenting their life. और उनके जीवन को जो दुष्ट आत्माएं बहुत ही सताते हैं, Fear is tormenting their life. उनके जीवन में जो डर है उस सताते हैं। Then they have sleeplessness, they have depression, they have many kinds of miseries in their life. और उनके जीवन में कई ऐसे परेशानियां जैसे कि निराशा और अच्छे से सो नहीं सकना। Outwardly they seems to be free, और बाहरी रूप से वो बहुत ही स्वतंत्र लगते हैं, but spiritually they are in bondage. लेकिन आत्मिक रूप में वो बंधन में है। And who can save them? कौन उनको बचा सकता है? Only Jesus. बस यीशु मसीह। That's why Jesus said, if you know the truth shall make you free. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। And these religious leaders had a conversation with Jesus. और ये जो धार्मिक जो नेता लोग थे वो उनको यीशु मसीह से एक बातचीत हो रहा है। They said, you speak about freedom? तुम स्वतंत्रता के बारे में कहते हो, We are not in bondage. हम तो कोई किसी दासवतन में नहीं We है, are free. हम तो स्वतंत्र है। And Jesus told them, whoever commits sin, they are slave to sin. तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं सच सच कहता हूँ, हर जो पाप करता है वह पाप का दास है। You say that you are free. और तुम कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो, But what about the sins in your life? लेकिन तुम्हारे जीवन में जो पाप है उसके बारे में क्या कहते हो? If you commit sin in your life, अगर तुम अपने जीवन में पाप करते हो then you are a slave to sin. तब तो तुम पाप का दास हो। These religious leaders, they said that we are totally free. और ये जो धार्मिक नेता है वो कहते हैं कि हम तो पूरी तौर से स्वतंत्र हैं। But Jesus is explaining about real freedom. लेकिन यीशु मसीह उनको जो सच्चाई में क्या स्वतंत्रता है इसके बारे में बोल रहा है। True freedom is freedom from sin. और जो सच्चाई में जो स्वतंत्रता है वो है पाप से स्वतंत्र। And who can bring you to that freedom? और कौन आपको उस स्वतंत्रता में लेकर आ सकता है? Only Jesus Christ. बस यीशु मसीह। That's why Jesus said, if the Son makes you free, you shall be free indeed. इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहता है कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। True freedom. सच्चाई में जो स्वतंत्रता है, True liberation. पूरी तरह से छुटकारा। God wants to liberate your life. यीशु मसीह आपको जीवन में छुटकारा देना चाहता है। God wants to bring that true freedom in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में वो स्वतंत्रता को लाना चाहता That है। is possible through the light of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के ज्योति से ही संभव। Are you ready to invite that light to your life? क्या आप यीशु मसीह को, उस ज्योति को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? Agree with us and let us pray for you. तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we pray for these precious people. स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके इन लोगों के लिए प्रार्थना करते As you are the light of this world, हैं। जैसे कि आप इस जगत के ज्योति हैं, shine in their lives. प्रभु आप उनके जीवन में चमके। I command every darkness to disappear from their lives in Jesus' mighty name. और हर एक अंधकार की शक्ति इनके जो जीवन में है उसको यीशु मसीह के नाम से मैं निकलने की आज्ञा देता हूँ। Every sickness has come out in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी की आत्मा इनके शरीर से बाहर निकले। Every body pain right now, get out from that precious man of God in the name of Jesus. और शरीर में जो भी दर्द है वो उस प्रभु के दास के शरीर से निकल जाए। Right now, every paralytic spirit come out in Jesus' name. और हर एक जो लकवापन है यीशु के नाम से चंगा हो जाए। Receive your healing in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से आप अपनी चंगाई को प्राप्त करें। Lord, bless these dear people. हे पिता, आप इनको आशीष करें। If they are going through some financial crisis, प्रभु वो अगर कोई आर्थिक समस्या से होकर जा रहे हैं, bless them financially. प्रभु आप उनको आर्थिक रूप से आशीष दें। Prosper their life path. प्रभु उनको बढ़ोतरी दे अपने जीवन में। Let them walk closer to Jesus. होने पाए कि वो यीशु के करीब करीब होकर चल सके। We bless them in the name of Jesus. हम उनको यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। Amen. आमीन। God has performed a great work in your life. और यीशु मसीह ने आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। Be thankful to Jesus. यीशु मसीह के लिए आप धन्यवादित रहें।
God bless you. यीशु मसीह आपको आशीष दे। Amen.